પોરબંદરના સાંદીપની વિદ્યાનિકેતન ખાતે સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરાઈ હતી. તો આજથી શરૂ થનાર પાવન શ્રાવણ માસની પણ વિવિધ કાર્યક્રમો વડે ભક્તિભાવથી ઉજવણી કરવામાં આવશે. સાંદીપની વિદ્યાનિકેતનમાં શ્રી હરિમંદિરના પટાંગણમાં પૂજ્યભાઈ શ્રી રમેશભાઈ ઓઝા, મહાનુભાવો અને સાંદીપની ઋષિકુળ પાઠશાળા અને સાંદીપની ગુરુકુળ અંગ્રેજી અને ગુજરાતી માધ્યમના સર્વે અધ્યાપકો, શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓની ઉપસ્થિતિમાં 77મો સ્વાતંત્ર્ય દિવસ ગરિમામય વાતાવરણમાં અનેક કાર્યક્રમો સાથે ઉજવવામાં આવ્યો હતો. વહેલી સવારે સાંદીપની સંકુલમાં સ્થિત શ્રી બાબડેશ્વર સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયના અધ્યાપકો અને ઋષિકુમારો દ્વારા સાંદીપની ગુરુકુળના શિક્ષકો, છાત્રો દ્વારા પૂજ્યભાઈશ્રીનું સ્વાગત એવં અભિવાદન કરવામાં આવ્યું હતું. પૂજ્યભાઈશ્રી દ્વારા શ્રી હરિમંદિરના પટાંગણમાં રાષ્ટ્રધ્વજ કરવામાં આવ્યો હતો અને ઉપસ્થિત તમામ લોકો દ્વારા સામૂહિક રાષ્ટ્રવંદન કરવામાં આવી હતી. ધ્વજવંદન બાદ સાંદીપની ગુરુકુળ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી માધ્યમના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પરેડ યોજવામાં આવી હતી. 77મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વ નિમિત્તે સાંદીપની ઋષિકુળ સંસ્કૃત પાઠશાળા અને સાંદીપની ગુરુકુળ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી માધ્યમના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો રજૂ કરવામાં આવેલા હતા, જેમાં ઋષિકુળના છાત્રો દ્વારા મેરી મિટ્ટી મેરા દેશ થીમ અન્વયે મેરી મિટ્ટી મેં મિલ જવા હિન્દી ગીતના સંસ્કૃત અનુવાદન કરીને સંસ્કૃત ગીત પર ખૂબ જ સુંદર અભિનય સાથે નૃત્ય પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાથે સાથે ગુરુકુળના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પણ નૃત્યની ખૂબ જ સુંદર રજૂઆત થઈ હતી, જેમાં સાંદીપની ગુરુકુળની છાત્રાઓ દ્વારા સુંદર રીતે નૃત્યની પ્રસ્તુતિ તેમજ દેશભક્તિ ગીતની પણ પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવી હતી. આજના રાષ્ટ્રપર્વ નિમિત્તે સાંદીપની ગુરુકુળના છાત્ર દ્વારા અંગ્રેજી અને ગુજરાતી ભાષામાં રાષ્ટ્રભાવ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને ઋષિકુળના છાત્ર દ્વારા સંસ્કૃત ભાષામાં પર્વ વિશેષ વક્તવ્ય આપવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં સાંદીપની ઋષિકુળ અને ગુરુકુળના આચાર્યોએ પણ ઉપસ્થિત રહી અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યેના મનોભાવ વ્યક્ત કર્યા હતા. કાર્યક્રમના અંતે પૂજ્યભાઈશ્રીએ સ્વાતંત્ર્ય પર્વ વિશેષ માનનીય પ્રવચન આપ્યું હતું. કાર્યક્રમના અંતે સૌને પ્રસાદ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. સાંદીપની શ્રી હરિમંદિરમાં પવિત્ર શ્રાવણ માસની ભક્તિભાવસર કાર્યક્રમો સાથે ઉજવણી થશે. આજે તારીખ 17ને ગુરુવારથી મહાદેવનો પ્રિય માસ પવિત્ર શ્રાવણ માસનો પ્રારંભ થયો છે. આ પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં અનેક શિવાલયોમાં મહાદેવની પૂજા, આરાધના, અભિષેક વગેરે કાર્યક્રમો સંપન્ન થયા હોય છે. એ જ મુજબ સાંદીપની સ્થિત શ્રી હરિમંદિરમાં પણ પૂજ્યભાઈશ્રીની પ્રેરણાથી ભગવાન શ્રી ચંદ્રમૌલીશ્વર મહાદેવના વિવિધ મનોરથ સંપન્ન થશે. પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં ભગવાન ચંદ્રમૌલીશ્વર મહાદેવને પ્રતિદિન સવારે 8 કલાકથી 9:30 કલાક દરમિયાન ઋષિકુમારો દ્વારા શાસ્ત્રોક્ત વિધિ મુજબ અભિષેક પૂજા સંપન્ન થશે તથા પ્રત્યેક સોમવારે સવારે 8 વાગ્યાથી 12 વાગ્યા દરમિયાન વિશેષ લઘુરુદ્ર અભિષેક પૂજા સંપન્ન થશે. શ્રાવણ માસ નિમિત્તે શ્રી હરિમંદિરના ચંદ્રમૌલીશ્વર મહાદેવને દરરોજ વિવિધ શૃંગાર કરવામાં આવશે તેમજ સોમવારે વિશેષ શૃંગાર મનોરથ કરવામાં આવશે, જેના દર્શનનો લાભ લેવા સૌને હાર્દિક નિમંત્રણ પાઠવાયું છે. શ્રાવણ માસ દરમિયાન યોજનારા વિવિધ મનોરથ અને ઉત્સવના દર્શન માટે પણ સૌને હાર્દિક નિમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું છે. નિપુલ પોપટ, પોરબંદર ટાઈમ્સ. धर्म के जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता के जय हो, भारतवर्ष अखंड रहे, भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. બધા ફરીથી પોતપોતાનું સ્થાન અલંકૃત કરે. રાષ્ટ્રધ્વજને ફરકાવ્યા બાદ હવે આપણો ઉપક્રમ છે માર્ચ પાસનો. માર્ચ પાસ વિશે કહું તો સૈનિકો દ્વારા કરવામાં આવતું ઔપચારિક કૂચ સમીક્ષા, જેમાં સલામી બિંદુથી પસાર થવામાં આવે છે. માર્ચ પાસ એ આપણા એકતા રજૂ કરવા માટેનું હોય છે. તો આવી જ માર્ચ પાસને રજૂ કરવા હું ગુરુકુળના છાત્રોને આમંત્રિત કરું છું.
हस्तगत को सलामी दे। एक साथ बैठ जाओ। शायरी द्वारा आमंत्रित करवा मांगू छू के चलता हूँ माँ फिर से छुट्टी मिली तो आऊंगा, चलता हूँ माँ फिर से छुट्टी मिली तो आऊंगा, मेरे पीछे मत रोना तेरे आंसू कैसे पहुँच पाऊंगा, मेरे पीछे मत रोना तेरे आंसू कैसे पहुँच पाऊंगा, तूने तो सिखाया था कि सिर ये कभी झुकने मत देना, तूने ही तो सिखाया था ये सिर कभी झुकने मत देना, वचन देता हूँ शहीद होने से पहले तिरंगा भारत का लहराऊंगा। एतान भावान इत्यादि कृते ऋषिकुल छात्रान् अहं निवेदयामि भारत मात्रे नृत्यम् अर्पयन्तु इति। तव रक्षण कर्मणि दुःख शतान्यपि नाददे तव गौरवहानि विधान परं दुरितं तुहतोऽपि न वा विददे। अयि मे वसुधे तव रक्षण कर्मणि दुःख शतान्यपि नावददे तव गौरवहानि विधान परं दुरितं तुहतोऽपि न वा विदधे।
मिलितः स्यामृदि तेजमृतश्च ततः स्याम्नितराममृतः इति चेहां हृदयन्तु ममाददते तव सरिताशु वहेहि निजं तव क्षेत्रेषु वहेहि निजम् इति चेहां हृदयन्तु ममाददते मृत्तिकया तिलकं विदधे निज बालतले च शपामि मुदा तव मानसुरक्षण कर्म विदो प्रयते प्रणयेन सदा तव मृत्तिकया तिलकं विदधे निज बालतले च शपामि मुदा तव मानसुरक्षण कर्म विदो विधिवत् प्रयते प्रणयेन सदा मिलितः स्यामृदि तेजमृतश्च ततः स्याम्नितराममृतः इति चेहां हृदयन्तु ममाददते तव सरिताशु वहेहि निजं तव क्षेत्रेषु वहेहि निजम् इति चेहां हृदयन्तु ममाददते मनोहर मे तदहो मम भावभुवो जनितं प्रणत गुणगौरव गर्वमलुक्षकवे तव पादयुगे सततं नमतः गीत मनोहर मे तदहो मम भावभुवो जनितं प्रणत गुणगौरव गर्वमलुक्षकवे तव पादयुगे सततं नमतः मिलितः स्यामृदि तेजमृतश्च ततः स्याम्नितराममृतः इति चेहां हृदयन्तु ममाददते तव सरिताशु वहेहि निजं तव क्षेत्रेषु वहेहि निजम् इति चेहां हृदयन्तु ममाददते અતિવ સુંદરમ નૃત્યમ. ત્યારબાદ હવે હું પૂજ્ય સદગુરુદેવ ભાઈશ્રીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું કે તે આ 77માં સ્વતંત્રતા પર્વોત્સવ નિમિત્તે આશીર્વચન રૂપે અમૃતરૂપી આશીર્વચન આપણને અનુગ્રહિત કરે. અમૃતરૂપી આશીર્વચનો દ્વારા પૂજ્ય ભાઈશ્રીને નિમંત્રિત કરું છું. कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री गुरुभ्यो नमः. वंदे भारत मातरम. हमारे राष्ट्र
भारतवर्ष का 77वां आज़ादी महोत्सव हम मना रहे हैं। राष्ट्र अमृत महोत्सव में गति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, निरंतर विश्व में मजबूती की ओर बढ़ रहा है। आज यहां पर सांदीपनी के ऋषि कुमारों ने संस्कृत गीत के साथ नृत्य की प्रस्तुति करी और भारत माता के प्रति अपना समर्पण, अपना अनुराग और भारत मां के लिए जीने मरने की सौगंध, ये भावना प्रस्तुत करी। बहुत अच्छा लग रहा था जब देश के जवानों के रूप में और संस्कृत गीत के साथ मां भारती को अपनी भावना समर्पित कर रहे थे। हमारे सांदीपनी के ही गुरुकुल ऋषिकुल के अध्यापक साहित्याचार्य सहदेव भाई जोशी ने सिनेमा के उस गीत का पूरा संस्कृत वर्जन तैयार किया है, उन्होंने ही लिखा है और आज यहां पर उसकी प्रस्तुति हुई। राष्ट्र का जवान जिस किसी भाषा में मां भारती के प्रति अपना अनुराग, अपना समर्पण प्रस्तुत करता है, अच्छा ही लगता है। भारत में अनेक भाषाएं हैं, अनेक संस्कृति है, इतना वैविध्य है, लेकिन हमारे जवान जब देव भाषा संस्कृत में कुछ कहे मां भारती को, तो मुझे लगता है कि मां भारती भी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। हमारा बच्चा जो विद्यालयों में पढ़ता है, अपनी भाषा में, राष्ट्रभाषा में या आंग्ल भाषा में कुछ सुनाता है माता पिता को, बेटा वो कविता सुनाओ, और बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहा है और उसने वहां सीखी हुई पोएट्री मेहमानों के सामने प्रस्तुत करी, तो माता पिता को बहुत गौरव होता है। लेकिन वही बालक जब संस्कृत में कुछ कहता है तो आने वाले मेहमान भी विशेष रूप से अभिभूत हुए बगैर रह नहीं सकते। ये तो ऋषिकुल के छात्र है, लेकिन जवानों के रूप में उन्होंने जब संस्कृत भाषा में, देव भाषा में मातृभूमि के प्रति अपना समर्पण, अपना स्नेह प्रकट किया, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से मां भारती विशेष रूप से प्रसन्न हुई होगी। हमारे गुरुकुल और ऋषिकुल के सभी छात्र मिलकर इस विद्या यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए जब राष्ट्रीय पर्व आते हैं, तिरंगे को हम सलामी देते हैं, राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण, अपनी निष्ठा प्रकट करते हैं। मुझे लगता है कि ये केवल 26 जनवरी या 15 अगस्त के तक सीमित बात नहीं है। उस दिन तो हम अपनी राष्ट्रभक्ति की बैटरी को विशेष रूप से चार्ज करते हैं, लेकिन चार्ज हुई हुई बैटरी साल भर राष्ट्रभक्ति से हमें ओत प्रोत करके मां भारती की सेवा में प्रस्तुत होने के लिए प्रेरित करती है, तैयार करती है, समर्पित करती है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं पूरा भारतवर्ष और भारतीय मूल के जो लोग विदेशों में बस रहे हैं, वे सब आज हमारे तिरंगे को सलामी दे रहे हैं।
एक बार ऐसा भी हुआ था कि 15 अगस्त के दिन मैं फ्रांस में, पेरिस में, हमारी भारतीय एम्बेसी में हमारे तिरंगे को सलामी देने के लिए वहां पर उपस्थित था, क्योंकि 15 अगस्त में मैं वहां था। तो वहां हमारी एम्बेसी में सब हमारे जो वहां के राजदूत और भारत के सभी प्रतिनिधि है, पेरिस में रहने वाले हमारे जो सिटीजन्स है या भारत के प्रति अनुराग रखने वाले कई अतिथि आए थे और सब ने मिलकर के तिरंगे को जो सलामी दी। मैं इसलिए आज ये याद करता हूं कि मैं उस घटना का साक्षी हूं, क्योंकि मैं वहां था उस समय। मैंने भी वहां मेरे देश के तिरंगे को अपना अभिवादन प्रस्तुत किया, अपना आदर प्रस्तुत किया। तो देश के कोने कोने में, चाहे विदेश में, जहां जहां भारतीय मूल के लोग हैं या भारतीय संस्कृति सभ्यता के प्रति अनुराग रखने वाले लोग हैं, वे सब आज के दिन तिरंगे को सलामी देते हैं। श्री हरि मंदिर के प्रांगण में हम बैठे हैं, भगवान श्री हरि की सन्निधि में। ऊंचे शिखर पर लहराती हुई ये धर्म ध्वजा और इसी तरह से ऊंचाई 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 को छूता हुआ हमारा राष्ट्रीय तिरंगा, वहां भक्ति और अध्यात्म की ऊंचाई है और यहां राष्ट्र के गौरव और राष्ट्र की उन्नति के लिए उस ऊंचाई को हम देख रहे हैं। बहुत तेज गति से और मजबूती के साथ इस वक्त हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। घर घर तिरंगा लहरा रहा है। आटा गूंथना हो तो आटे के कण 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 लाखों करोड़ों कण हैं, लेकिन उससे रोटी नहीं बनती। रोटी बननी है तो आटा गूंथना जरूरी है, और आटे को गूंथने के लिए उसमें पानी डालना और आटे को गूंथना, लोट बांधवानो है। राष्ट्र के भी हम सब लोग, एक एक व्यक्ति उस आटे के छोटे छोटे कण की भांति ही है, लेकिन हमको बांध के कौन रखेगा? केवल आटा तवे पर रखा जाएगा तो रोटी नहीं बनेगी, आटा जल जाएगा। लेकिन वही आटा गूंथ करके, रोटी बेल करके यदि तवे पर रखा जाए तो वो जलेगी नहीं, वो सिकेगी। और सेकी हुई रोटी से पोषण होता है, हमारा जीवन चलता है। उसी प्रकार हम सभी नागरिक उस आटे के कण कण की तरह है। हमको बांध कर रखने वाला यदि कोई फोर्स है, कोई शक्ति है, तो वो है ये राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति के जल से ही सदा हम भीगे रहे, राष्ट्रभक्ति वाली नमी सदा हमारी आंखों में रहे, राष्ट्रभक्ति से खून सदा हमारा गरम रहे। रोटियां भी गरम गरम हो तो खाने में मजा आता है। गरम गरम फलके आ रहे हो तो भोजन का एक मजा है। रोटी ठंडी ना हो जाए, हमारी छाती, हमारा लहू भी राष्ट्रभक्ति से गरम होना चाहिए। हम एक रहें, हम नेक रहें, हम भारत माता के इस तिरंगे को, हमारे राष्ट्र के इस तिरंगे को और ऊंचाई तक ले जाने के लिए संकल्पबद्ध बने। आज स्वतंत्रता दिवस है, तब जिम्मेदारियों का भी भान उतना ही आवश्यक है। और इस आजादी को न केवल बनाए रखना है, बनी तो रहेगी अब मजबूती से, कोई सवाल नहीं। अब वो पुराने वाला इतिहास दोहराने का कोई प्रश्न नहीं कि फिर कोई आक्रांता आए और हम लोगों को गुलाम बनाए। लेकिन आजादी को बनाए रखना यही पर्याप्त नहीं है, हमें हमारे राष्ट्र को और मजबूती से विश्व में प्रथम स्थान पर ले जाना। सरकार ऐसी बनी हुई है इस वक्त, वातावरण ऐसा बना हुआ है इस वक्त, चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हो, चाहे विपक्ष में बैठे हुए लोग हो, सभी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है।
विरोध पक्ष वाले विरोध करें, वो भी राष्ट्रभक्ति से ही प्रेरित होकर के करे, और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर के ही कर रहे हैं। इसलिए नीति, नियत, निष्ठा, उसमें कोई शंका जब नहीं है, तब निरंतरता ये उन्नति की बनी ही रहेगी, उसमें कोई शंका नहीं है। हम सब भारत माता के प्रति पुनः अपने समर्पण भाव को दोहराते हुए, भारत माता की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हुए जय घोष करेंगे। सभी गुरुकुल के, ऋषिकुल के प्राचार्य, हमारे अध्यापकगण, आज यहाँ पर आए हुए हमारे अतिथिगण और सभी छात्र, आए हुए सभी मेहमान, और यहां से बोल रहा हूं तो देश और विदेश में शांति प्रणति के प्रति समर्पित सभी लोगों को और पूरे भारतवर्ष को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। પ્રણામ। પૂજ્યભાઈશ્રીએ પોતાના અમૃતરૂપી વાણીથી આપણને અનુગ્રહિત કર્યા। Now I want to invite Gurukul students to offer a dance for nation. Gurukul students. रागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। ये प्यार का संगीत है, ये शादी का गीत है, ये एकता का राग है। भारत अनोखा राग सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है, अनोखा राग है। भारत के इस एक तारे पे गूंज है जो
ताल में। सुर अनगिनत गीत एक है, ये देश सबका देश है। सबका ऐसा राग है, सौरागिनियों से सजा भारत का अनोखा राग है। भारत अनोखा राग है, प्रभु में अनुराग है। सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। આઉટસ્ટેન્ડિંગ પરફોર્મન્સ. ત્યારબાદ હવે હું ગુરુકુળની છાત્રા કેશવાલા સ્નેહાને નિવેદન કરીશ કે તે 77મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વોત્સવ ઉપર પોતાના હૃદયસ્થ ભાવ રજૂ કરે. ગુરુકુળની છાત્રા કેશવાલા સ્નેહા. कश्मीर जिसकी सूरत है, कन्याकुमारी जिसके चरण। कश्मीर जिसकी सूरत है, कन्याकुमारी जिसके चरण। शहंशाह ताजमहल जिनका हृदय है। ऐसी इस पवित्र भूमि पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मातृभूमि को मेरा प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित परम पूज्य भाई श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं सभी अतिथिगण को इस स्नेहा केशवाला का जय श्री कृष्ण। आज का इस शुभ अवसर यानी 15 अगस्त के आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करती हूँ। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करती हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का मैं गुणगान करती हूँ, गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। अगर तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखती हूँ, बस यही अरमान रखती हूँ। आज मुझे खुलकर बोलना और आप लोगों को समझकर सुनना। देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण। आजादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आजादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड खड़े रहकर राष्ट्रगान गाना और फिर वंदे मातरम, भारत माता की जय जोर जोर से ये सब नारे लगाने अभी कोई देशभक्ति है। अरे ये तो वो सदी है जहाँ पे झूठ एवं स्वार्थ की भावनाओं से रचित हुए लोग मुझे नजर आते हैं। अरे ये तो वो सदी है जहाँ पे नीति, नियम, नैतिकता जैसे मूल्यों को कड़ियों के भाव बेचते हुए लोग मुझे नजर आते हैं। अरे ये तो वो सदी है जहाँ पे सत्य, अहिंसा, सदाचार, समरस एवं सादगी की धज्जियां उड़ाते हुए लोग मुझे नजर आते हैं। अरे क्या हुआ इस देश के हम सब नौजवान जो आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फ्री फायर, पबजी इन्हें ही अपनी आज की दुनिया मानने लगे हैं। अरे तकलीफ तो मुझे तब होती थी जब आज के हम सब
नौजवान जो आज अपने कानों में हेडफोन लगाए तेजी से बाइक चलाते हुए जा रहे होते हैं, अरे हम क्यों भूल जाते हैं कि जिस धरती को हम रौंदते हुए जा रहे हैं ना, उस धरती का एक एक इंच भी हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने खून की नदियां बहा दी थी। तकलीफ तो मुझे तब होती थी जब आज का ये नौजवान जिसके कंधों पे जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण एवं समाज की भावनाओं को जोड़े रखने की, वही युवा आज मुझे शराब में भीगा हुआ और पबजी फ्री फायर जैसी गेमों में डूबा हुआ नजर आता है। केवल सेनाओं में भर्ती होकर वीर सिपाही बनना ही कोई देशभक्ति नहीं है। आजादी के पहले बात कुछ अलग थी। तब हम झांसी की रानी से लेकर आजम वीर भगत सिंह, वीर सावरकर से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें हम आजादी कहते थे नहीं। लेकिन आज मायने बदल रहे हैं। अगर आज मैं देशभक्ति कहूं तो भी किससे कहूं? महोदय, जो लोग अपने समाज, परिवार और खासकर देश के प्रति कुछ समर्पित करने का भाव रखते हैं ना, तो वो है देशभक्ति। भ्रष्टाचार को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर एक काम है देशभक्ति। अगर एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। एक अध्यापक अपने छात्रों को पूरी ईमानदारी से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से निभाए तो वो है देशभक्ति। यहाँ तक कि राष्ट्र निर्माण का सबसे पहला सोपान ही है देशभक्ति। हर एक देशद्रोही का जीवन में आने वाला तूफान है ये देशभक्ति। तभी तो ये देशद्रोही समझ सकेंगे। अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, तो ये आसमान तेरा है। तुझे भाईचारे की तरह रहना है तो रह ज़मीं पर, तुझे भाईचारे की तरह रहना है तो रह ज़मीं पर, वरना क्या कब्र भी यही है और यह कब्रिस्तान भी तेरा है, और यह कब्रिस्तान भी तेरा है। महोदय, लड़ने झगड़ने से राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। अरे क्या ऊंच, क्या नीच, क्या अमीरी, क्या गरीबी, क्या यही हमारी सच्ची देशभक्ति है? जी नहीं। हम आज ये सोचते हैं कि यहाँ पे इतनी गंदगी क्यों है, ये हमारी सोच है। इसलिए जातिवाद, गातीवाद, नक्सलवाद और खास करके तो भ्रष्टाचार ही राष्ट्र निर्माण में अवरोध ठहराते हुए नजर आते हैं। इसलिए तो मुझे आज मेरा ये अखंड भारत खंड खंड होता हुआ नजर आता है। इसलिए मैं ये जरूर ही कहना चाहूंगी कि ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर, बस जियो वतन के नाम पर। तो आओ युवानों, एक उम्मीद बने, एक उम्मीद के साथ चले, हर राज्यों के साथ हाथ मिलाए, उनके खान पान, बोलचाल और खासकर भाषाओं से परिचित हो। अगर हमें विश्व के सामने खड़े रहना है, विश्व की चुनौतियों का सामना करना है, विश्व के सामने सिर उठा के चलना है, तो हम सबको एक होना होगा, एक ताकत बननी होगी। जैसे अकेले तो हम बूंद की तरह है, अगर मिल जाए तो सागर, अकेले तो हम एक धागा है, अगर मिल जाए तो चादर, अकेले तो हम कागज से, अगर मिल जाए तो किताब, अरे अकेले तो हम क्या ही है, अगर मिल जाए तो बहुत कुछ। और अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे बढ़ाने की, हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे बढ़ाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे बढ़ाने की, हमारे देश को आगे बढ़ाने की। अस्तु। जय हिंद, जय भारत। इतने अच्छे वक्तव्य के बाद हियर आई वॉन्ट टू से दैट आवर फ्लैग डज नॉट फ्लाई बिकॉज ऑफ द विंड मूव्स इट, इट फ्लाइज विद द लास्ट ब्रेथ ऑफ each soldier who died protecting it. Now I invite Odedra Kangna to manifest her feelings about nation. Odedra Kangna.
Some things can't just be expressed in words. My eyes are little wet seeing the free-flying birds. These are the tears of happiness seeing the birds flying up in the sky. Thanks to the fearless leaders who faced it all, making tough times passed by. Let's learn to care for the people around us. Let's learn to care for our nation in every possible way. Come, let us together wish our beautiful India a very happy Independence Day. A very good morning to the Honorable Chief Guest, respected Principal Sir, respected teachers, and my dear friends. My name is Kangna Oridra, and I stand before you today to commemorate the valor of our freedom fighters on this day. Since 1947, we are celebrating Independence Day. So, I don't think any one of you present over here isn't aware about what is Independence Day. British colonized over India, many lost their lives, many lost their families, mother lost their sons, children lost their fathers, so, and finally our India was free. Of course, I know it's not as easy as I'm saying it is, but still, why to discuss something here on the podium which is easily available on Google and Wikipedia? Because hello, it's modern world, where we can find Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp on the phone of each and every one. Oh, it's Independence Day. Let me have a beautiful picture with a caption of #Independence Day, #I'm free, #I love India forever, #. Forward it to my colleagues, WhatsApp status updated, Instagram story updated, Facebook post updated, and Independence Day is done. This is what most people do on this day. Some might be in their homes or their offices, but the very next day, since the Independence Day is over, the so-called nationalism is gone. It's quite ironical that we take care of our parents each and every day, and our parents take care of us each and every day. But to care for our mother nation, we have fixed 2 days, Republic Day and Independence Day. And we say we love our country. But in this world, we hardly love our country. No doubt we say we love our country, but the people who stays at the border of the country, no matter what weather it is, day, night, never mind, are the ones who truly love our country. We often say that so-and-so celebrity is my idol. But why do we fail to mention our fearless freedom fighters because of whom we are free today? Why do we fail to mention our brave soldiers because of whom we are safe today? Why do we fail to mention our parents because of whom we are acting in this world? Why do we fail to mention our teachers because of whom we have something in our brains? Why do we fail to mention the great Indian personalities like Neeraj Chopra, P.V. Sindhu, who made us proud? Nobody mentions about them. Today we are celebrating Independence Day, which is to be celebrated when one is truly independent. But I don't think any one of us present over here is truly independent. We say that we are celebrating 77th year of Independence Day when still today we are bounded with negative thoughts. When we still live with log kya kahenge. When we still have our egos on the top. When still no one was bothered when someone was getting killed on the road. This 15th August 2023 is not the real Independence Day, but the under construction Independence Day. Let this 15th August be actually truly Independence Day, when the people of our country will keep their egos aside for a second and will learn to care for the people around them, will learn to care for our nation, and problems like corruption, discrimination, inequality, casteism, religionalism will vanish from our country. Then this celebration will actually have some meaning. Lastly, I would like to conclude by saying that नफरत बुरी है ना पालो इसे, नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिल में खालिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है जरा संभालो इसे. Thank you so much and have a wonderful day. અંગ્રેજીમાં આવું સરસ વક્તવ્ય સાંભળ્યા બાદ હવે હું નિવેદન કરું છું ગુરુકુળના છાત્રોને તે અહીં આવે અને પોતાના દેશભક્તિ ગીતને માં ભારતીના ચરણોમાં અર્પણ કરે. ગુરુકુળના છાત્રો.
વન્ડરફુલ સોંગ. આપણે બધા વંદે માતરમ આ રાષ્ટ્રગીત દ્વારા આપણા તિરંગાને સન્માન તો આપીએ જ છીએ, પણ તેને સંસ્કૃત ગીત રૂપે રજૂ કરવા, તે જ ભાવોને સંસ્કૃત ગીત રૂપે રજૂ કરવા હું ઋષિકુલના છાત્રોને નિવેદન કરું છું કે તે માં ભારતીના ચરણોમાં સંસ્કૃત ગીત અર્પણ કરે. ઋષિકુલ છાત્રો. नान्यचिन्तनं नान्यद्वेषहितातिरुते वन्दे
सुन्दरं गीतं तत्पश्चात् देशभक्तिविषये स्वविचारान् प्रकटयितुं व्यासराजम् अनुरुन्धे। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहं। पूज्याः पूज्यतमाः स्वविषयधन्याः विद्वांसो गुरवः तथा च राष्ट्रभक्तिरसरसिकाः मे ज्येष्ठाः कनिष्ठाः बान्धवाः भ्रातरः भगिन्यश्च सर्वेभ्यः जय श्रीकृष्णः नमस्काराः। प्रजासत्ताकपर्वणः सर्वेभ्यः शुभाशयाः। अद्याहं राष्ट्रभक्तिमहिममण्डितं किमपि वक्तुम् इच्छामि। तद्यथा न यत्र देशोद्धृतिकामनास्ते न राष्ट्रभूमेर्हितचिन्तनं च न राष्ट्ररक्षा बलिदानभावः श्मशानतुल्यं नरजीवनं तद्। निखिले भुवने न कोऽपि नरः यः स्वमातृभूमिं स्वदेशं वा न प्रणमति। राष्ट्रीय भावना एव सा भावना या राष्ट्रोन्नत्यर्थं प्रेरयति। स्वदेशाभिमानं स्वदेशगौरवं च प्राणेभ्यः अप्यधिकं मन्यते। प्राचीनकालादेव राष्ट्रभक्तिर्मानवजीवने ओताप्रोचा च। तद्यथा ऋग्वेदे अहं राष्ट्री संगमनि वसूनां, यजुर्वेदे वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, अथर्ववेदेऽपि पृथ्वीसूक्ते बहवो मन्त्राः प्राप्यन्ते। तद्यथा माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः, अहं तुभ्यं बलिरुतः स्याम इति रामायण महाभारत पुराणादिषु च देशभक्तिः बहुधा कीर्त्यते। तया एव प्रेरणया शतशो महात्मनः शूराः वीराश्च सर्वस्वार्पणं विहायापि देशरक्षणं व्यददुः। केचन च देशोन्नतो स्वीयान् असून् तृणवत् उज्जाञ्चक्रुः। देशप्रेम देशभक्तिश्च जन्मनः अनिवार्यं कर्तव्यम्। तया एव प्रेरणया शतशो वीराः समराङ्गणे स्वजीवनानि तृणवद् समर्पयामासुः। देशभक्त्या एव देशोन्नतो भावना, समाजसुधार भावना, समाजोन्नतिकामना, राष्ट्रश्रीवृद्धिकरणं, शत्रुन्मूलन पुरःसरं देशस्य सर्वविध सुदृढीकरणं प्रवर्तते। यत्र न जागर्ति देशभक्तिभावः स मानवः पशुशङ्काशो गण्यते। तद्यथा आर्यभक्तकविना, जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। आंग्ल भाषायाः विद्वान् डेनियल वेब्स्टर निर्देश्यति यद् अस्माकं जीवनोद्देश्यं राष्ट्रमेव, समग्रं राष्ट्रं, न किञ्चित् अन्यत्। लेट अवर ऑब्जेक्ट बी अवर कंट्री, अवर वॉल कंट्री एंड नथिंग बट अवर कंट्री। डेनियल वेब। डेनियल महोदयोऽपि निर्देश्यति यद् जीवनोद्देश्यं सम्पादनं राष्ट्रमेव। अर्थात कथयति यद् अवर कंट्रीज वेलफेयर इज अवर फर्स्ट कंसर्न एंड who promotes that best provides his duty. हार्वर्ड। राष्ट्रभक्तिः राष्ट्रभावः मानवानां परमः कर्तव्यः वर्तते। यत्र न जागर्ति देशभक्तिभावः स जीवनः शुष्क सरित् एव। अतएव मातृभूमिस्तुतो प्रत्यहं गीयते सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। आङ्ग्लभाषायाः बेरण्कविराः यो न राष्ट्रे स्निह्यति न स स्नेहं कर्तुं जानीते। ही who loves not his country can love nothing. का नाम देश भावना या राष्ट्रं सर्वस्वार्पणं प्रति प्रेरयति। राष्ट्रभक्तिरेव सा भावना या दीपशिखासु पतंगवत् आत्मोत्सर्गं प्रति शिक्षयति। तया भावनया एव महाराणा प्रताप, शिवाजी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, लाला लजपत राय, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभभाई पटेल प्रभृतयः स्वदेहमोहं परित्यज्य राष्ट्ररक्षणं व्यददुः। केचन च स्वीयान् असून् तृणवद् उज्जाञ्चकार। देशभक्त्या एव स्वदेशाभिमानं, देशोन्नतिकामना, स्व आत्मोत्सर्गभावना तथा च नैतिकाभ्युन्नतिश्च सम्भाव्यते। अतएव भारतभूमिः अस्माकं माता,
अतएव तत्पुत्रत्वेन मातुः रक्षणम् अस्माकं परमं कर्तव्यम् अतएव साधु विहरीयते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अभिगरीयसि अहं तुभ्यं बलिरुतः स्याम इति सत्यवसरे सत्यां चावश्यकतायां देशभूमेः रक्षणम् अस्माकं परमं कर्तव्यम् अतएव परमं कर्तव्यं वर्तते स्वातन्त्र्यकाले किमपि अहं कर्तुं न मीहे तदनन्तरम् एतद् वाक्पुष्पं भारतमातुः चरणकमले समर्पयामि सर्वेभ्यः जय श्रीकृष्णः विरमामि नमामि यामि સુષ્ઠુભાષિતમ જેમ કીધું કે જે માણસ પોતાના દેશ પ્રત્યે માન નથી રાખતો કે તેની ગરિમા નથી જાળવતો તે પશુ સમાન છે. માટે આપણે આપણા દેશની ગરિમા જાળવી રાખવી જોઈએ અને જે વીરોએ બલિદાન આપ્યા છે તેનું બલિદાન કદી ન ભૂલવું જોઈએ. આવો એવા જ ભાવ સાથે ત્યારબાદ હું ઋષિકુલના પ્રધાનાચાર્ય શ્રી બિપિનજી જોશીજી ગુરુજીને નિવેદન કરીશ કે તે અહીંયા આવી અને આપણને જ્ઞાનોપદેશ આપે. બિપિન ગુરુજી. श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहं. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. મંચસ્થ તમામ પ્રાધ્યાપકગણ, ગુરુજનો અને પ્રિય વિદ્યાર્થી બંધુઓ, ભગિનીઓ, આજે સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે આપણા જેમ હમણાં થોડી જ વાર પહેલાં પૂજ્ય ભાઈશ્રી કહ્યું એમ આ દિવસ તો માત્ર બેટરી ચાર્જ કરવાનો છે. કાયમી આપણું જીવન એ રાષ્ટ્ર પ્રેમ, એ રાષ્ટ્ર ભાવના અને દેશ પ્રત્યેની લાગણી આપણા જીવનમાં હોવી જોઈએ. એવા જ ભાવથી ગીતાજીમાં કહે છે કે યહ શાસ્ત્ર વિધિમુત્સૃજ્ય વર્તતે કામ કારતઃ, જે શાસ્ત્રના કર્તવ્યોને, એની ફરજોને, એના નિયમોથી જે વિરુદ્ધ ચાલે છે અથવા તો એનું ઉલ્લંઘન કરે છે જીવનમાં, એવા વ્યક્તિ ક્યારેય પણ પોતાના જીવનમાં ન સિદ્ધિમવાપનોતી, એ ક્યારેય સિદ્ધ કે સફળ થતા નથી. તો આપણે દરેકે આવા પવિત્ર દિવસે એવી મનોમન પ્રતિજ્ઞા કરવી જોઈએ કે અમે જે વિભાગમાં, જે ક્ષેત્રમાં જ્યાં છીએ ત્યાં નિષ્ઠાથી, શ્રદ્ધાથી અને ભાવનાથી એ કાર્યમાં જોડાય અને એક દેશ પ્રત્યે, એક સંસ્થા પ્રત્યે અને આપણે આપણા શિક્ષકો પ્રત્યે વફાદાર રહીશું. આવી જ એક સદભાવના રજૂ કરી અને મારી વાણીને વિરામ આપું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. સાથે સાથે અમારા ઋષિકુલના જે વિદ્યાર્થીઓને તૈયાર કરનારા એવા શ્રી કશ્મીરાબેનને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. એવા જ ડૉક્ટર ફાલ્ગુનભાઈ અને હિતેશભાઈ, એમણે પણ ખૂબ મહેનત કરી અને આ બાળકોને તૈયાર કર્યા છે. આવી ભાવના, એકતા સાથે આપણે સાથે રાખતા રહીએ એ શ્રીહરિના ચરણોમાં પ્રાર્થના. અસ્તુ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ જ ધન્યવાદ ગુરુજી. પ્રધાનાચાર્યશ્રીના ઉપદેશો મેળવ્યા બાદ એન્ડ નાવ આઈ રિક્વેસ્ટ નાયર સર, પ્રિન્સિપલ નાયર સર, ટુ શેર ધેર ફિલિંગ્સ અબાઉટ ધીસ ઓકેઝન. Good morning. Really, it is a difficult position to be the last speaker in a function. Due to two reasons. One, shortage of time. Second, जो बोलना चाहते हैं वो सब पहले वाले सब बोल गए.
this day I take this opportunity to remember all those valuable souls who laid their life for the freedom of this country. And I want to share two things with the students here, not for the adults. All of us are born in independent India. 1947 के बाद सबका जन्म हुआ है. That is why none of us are aware of what is the difference between independence and enslavement. आज़ादी का होना ना होना उनकी फर्क हमें पता नहीं है. Definitely, as Paisri said, we are a great nation and becoming greater and greater, and everybody is putting their effort to take this country to new heights. लेकिन हमारे सोचने का एक पर्टिकुलर तरीका है. That is like an abbreviation. इंग्लिश अल्फाबेट की 5 C's इसको कहते हैं. 5 C अल्फाबेट की A B C तीसरा अक्षर 5 C को जोड़ के एक सोचने की तरीका है. 5 C's आप लिखते हैं तो 5 C के ऊपर C लिखने के ऊपर एक डॉट डालकर S लिखते हैं. 5 C's. तो हम लोग सोचना S से शुरू करते हैं, यानी कि सेल्फ, खुद के बारे में हमेशा सोचते हैं. आई मी माई सेल्फ, मेरे आजू बाजू. पहला हमारे विचार आते हैं खुद के बारे में, सेल्फ. उसके बाद 5 C का एक ऑर्डर है. उसमें पहला C यानी कि क्लैन, CLAN, क्लैन यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली. पहले खुद के बारे में सोचा, फिर अपने एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में सोचते हैं. अगर उसके बाद भी टाइम और एनर्जी बचते, देन वी थिंक ऑफ कॉमरेडरी. कॉमरेडरी यानी कि फ्रेंडशिप. उसके बाद अगर एनर्जी है तो दोस्ती के बारे में सोचते हैं. दैट्स द सेकंड C. द थर्ड C इज कम्युनिटी, समाज. अगर कॉमरेडरी के बाद भी अगर एनर्जी बाकी है तो हम समाज के बारे में सोचते हैं. देन कम्स द फोर्थ C, दैट इज कल्चर, यानी अपना संस्कृति. वो 4th नंबर पे आता है. उसके बाद अगर टाइम बचते, एनर्जी बचते, तो हम सोचते कंट्री. दैट्स द 5th C. देश के बारे में आखिर में सोचते. अगर ये जो नया जनरेशन है, नया में सिर्फ आपको नहीं, इंक्लूडिंग मी, ईच वन ऑफ अस हु आर रिप्रेजेंटिंग यंग इंडिया, स्टार्ट थिंकिंग इन द रिवर्स ऑर्डर. हमेशा के लिए तो नहीं सोच सकते, लेकिन इश्यू बेस्ड और सिचुएशन बेस्ड, यानी कुछ कारण से या कुछ सिचुएशन में अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में सोच सकते. रिवर्स ऑर्डर क्या है? द फर्स्ट C, दैट इज कंट्री, देश पहले. देन द सेकंड C, दैट इज कल्चर, संस्कृति. देन कम थर्ड C, दैट इज कम्युनिटी, समाज. देन द फोर्थ C, that is camaraderie, that is friendship. Then come 5th C, that is clan, अपने extended family. और लास्ट में सेल्फ, खुद के बारे में. इक्वेशन सेम ही है, 5 C's है, लेकिन सोचने की ऑर्डर बदले. मे बी वी विल बी एबल टू टेक दिस कंट्री टू ग्रेटर हाइट्स. दिस इज एन यंग कंट्री. 28 ईयर की एवरेज एज वाला 140 करोड़ का इस देश को विश्वगुरु बनने से या वापस सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रुक सकते. इट इज इन यू, द चिल्ड्रन हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड इट इज इन अस, द टीचर्स हु आर इनटू एजुकेशन, टू चेंज द थॉट प्रोसेस ऑफ दिस न्यू जनरेशन. जय हिंद. सेलिब्रेट दिस डे एवरी डे विद द सेम enthusiasm, the same emotions, and let us have patriotism and nationalism in our life on every day. Jai Hind. થેન્ક યુ નાયર સર ટુ ગીવ અસ ધીસ મેસેજ. અને ત્યારબાદ હવે બધા જ ઉપક્રમો પૂર્ણ થયા બાદ હવે આ સભાને પૂર્ણ કરવા આપણે બધા પૂર્ણ મદહ મંત્રથી આ સભાને પૂર્ણ કરશું. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 अस्तु। नमस्कार। वंदे भारत मातरम। भारत राष्ट्र आज़ादी का अमृत महोत्सव काल में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश की स्वाधीनता को 76 साल पूरे हो गए और 77वां स्वाधीनता दिवस हम मना रहे हैं। हर घर तिरंगा की भावना से पूरा राष्ट्र ओतप्रोत है। चाहे मंदिर हो, उसके ऊपर भी ध्वज होता है, ध्वजा होती है, और वहाँ भी ध्वजा का अत्यंत पूजनीय स्थान और महत्वपूर्ण स्थान है। इतना ज़्यादा महत्व है कि यदि आप देव दर्शन नहीं कर पाते तो आप ध्वजा दर्शन भी कर लें तो देव दर्शन के बराबर माना जाता है। युद्ध में जो रथ जाता है, जैसे पांडवों के रथ पर जो ध्वजा होती है, अर्जुन जी के रथ पर ध्वजा में कपि हनुमान जी कपिध्वज कहलाते हैं वो। तो जब तक वो ध्वजा ऊंची है, योद्धा पूरी लड़ायक मानसिकता के साथ युद्ध करता है, आगे बढ़ता है। उसी तरह हमारे राष्ट्र का ध्वज भी, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। श्रावण मास चल रहा है, अधिक श्रावण और फिर निज श्रावण। महादेव की हम आराधना करते हैं। देवों में देव महादेव है, महान। हमारा राष्ट्र भी, मेरा भारत महान। जिस प्रकार महादेव पर हम अभिषेक करते हैं, हम भी प्रत्येक भारतवासी राष्ट्रीय भावना का कलश लेकर के हमारी राष्ट्र निष्ठा रूपी जल से हमारे महान भारत की आराधना करेंगे, अर्चना करेंगे, अभिषेक करेंगे। मेरे लिए पहले मेरा देश, बाद में सब कुछ। इस निष्ठा के साथ हम भारत के प्रति समर्पित हो रहे हैं। महादेव की अर्चना में भी गंगा जल से हम स्नान करावें, अभिषेक करें, और फिर केसरी चंदन का तिलक लगावें और बिल्व पत्र चढ़ावें। गंगा धवल है, सफेद, तिलक केसरी है, चंदन, और बिल्व पत्र हरा है। ये केसरी, सफेद और हरा तीनों रंगों से हम महादेव की भी अर्चना करते हैं, और ये तीनों रंग हमारे तिरंगे में भी है। हम किसी भी जात के हो, किसी भी कौम के हो, हम सबसे पहले भारतीय हैं। हमारी पहले निष्ठा भारत के प्रति हो, नेशन के प्रति हो, और हम जो भी करें उसमें नेशन फर्स्ट वाली पॉलिसी ध्यान में रखते हुए, मेरे देश को कोई नुकसान न हो, इस तरह से हम अपना कार्य करें, अपनी उन्नति करें। ये जिम्मेदारी प्रत्येक भारतीय की है। बिना जिम्मेदारी की स्वतंत्रता स्वच्छंदता बन जाती है। हम अपनी स्वतंत्रता की पूजा अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन करके ही कर सकते हैं,
और तब स्वतंत्रता के फल का स्वाद हम चख सकते हैं, उसका हम आनंद ले सकते हैं। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम सब ये कामना करते हैं कि हमारा ये तिरंगा सदैव गौरवपूर्ण ऊंचा लहराता रहे। विजयी विश्व और जगत गुरु भारत न केवल स्वयं ऊपर उठे, पूरे विश्व को भी उन्नति की ओर ले चले। बहुत बहुत बधाई। वंदे भारत मातरम।